जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Jai Shardema students, how are you all? Fine, that's very good. Okay, let's continue. In our previous video, we have started our fourth chapter, that is equatorial forest. In equatorial forest, we have studied what are the equatorial forest, where it lies, that is the location of equatorial forest, and the climate of equatorial forest. In that, we have studied that equatorial forest lies only in 3 continents, that is South America, Africa and the southern part of Asia. Equatorial forest सिर्फ 3 continents में lie करते हैं because they lies on the both side of equator, from equator to 10 degree north and from equator to 10 degree south. Now, if we talk about the climate of equatorial forest region is very hot and humid because first of all this region lies near the equator, which receives the direct rays of sun throughout the year. And the second thing is that this is the region which receives the rainfall throughout the year. That is why this region is very hot and humid. Now, today we have to start our next topic, that is the plant life. Students, we have already studied about the climate. वहाँ का climate हम पहले ही पढ़ चुके हैं that climate is very hot and humid. यहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ पर plants की growth बहुत ज़्यादा होती है. There is a luxuriant growth of plants in this region. Now, today we will start our next topic of the chapter, that is plant life. Let's read first of all what is given over here. Since the region receives rainfall throughout the year, there is a luxuriant growth of natural vegetation. Yes, I told you earlier, because कि यहाँ पर पूरे साल rainfall होता है. This region receives the rainfall throughout the year. The growth of trees is very much high. यहाँ पर जो trees की growth होती है वो बहुत ज़्यादा होती है because this region receives the rainfall throughout the year. यहाँ पूरे साल बारिश होती है. The equatorial region is an evergreen region as all the trees remain green and do not shed their leaves at the same time. The thing I told you earlier कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. आई टोल्ड यू ना कि अदर नेम ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज द प्लांट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. Students, I am saying that they never shed their leaves at the same time. That does not mean they did not shed their leaf. They shed, but at the different times of year. यहाँ के जो trees होते हैं वो बहुत सारी layers में होते हैं. They are mostly found in 4 layers. Emergent layer, canopy layer, forest floor, ground floor. ऐसे बहुत 4 layers होती हैं जिनमें यहाँ के ट्रीज़ की ग्रोथ होती है और हर एक लेयर का अपनी लीव्स को शेड करने का टाइम अलग अलग होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेनेवर वी विल सी देम
they looks green and that's why we call them evergreen forest. और इस वजह से हम उन्हें evergreen forest भी कहते हैं, बिकॉज कि यहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं उनका अपने अपनी लीव्स को शेड करने का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और इसी की वजह से ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं. द ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट हाइट्स forming several layers. See, I told you they are having 4 layers. The topmost layer is emergent layer, before that is canopy, then forest floor, and the last one is ground floor. That I will show you later, okay? The trees of these region also have broad leaves and thick branches. जो ये ट्रीज हैं, इस रीजन के जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो थिक मोटी होती है. सी, आई शो यू. दिस इज हाउ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लुक्स लाइक. ऐसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं. दीज लुक्स evergreen. Every time whenever we see them, they looks green. Now, this is how the trees grow in the equatorial forest region. The topmost light green color में जो हम देख रहे हैं, that is called emergent layer. It is the topmost layer. Below that is the canopy layer. Before that, it's understory. That is also you can call the forest floor. And the last is ground floor. In these 4 layers, the trees grow in this region. इन layers में trees यहाँ पर grow होते हैं. जब भी इनमें से किसी भी एक layer के leaves shed होते हैं, बाकी की 3 layers पर leaves होते हैं. That's why ये area, ये जो region है वो हमेशा evergreen रहता है. इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, फॉर्मिंग अ कैनोपी एट देयर टॉप, दैट द ब्रांचेस एंड लीव्स, जो लीव्स होती है एज आई शोड यू अर्लियर. सी, द कैनोपी लेयर, इसके जो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं और ब्रांचेस थिक होती हैं, जिसकी वजह से ये नीचे के एरिया को ऑलमोस्ट कवर कर लेती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग द सनलाइट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द सनलाइट टू रीच ऑन द ग्राउंड फ्लोर. सो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये अंदर से बहुत डीप और डार्क होते हैं, बिकॉज जो कैनोपी लेयर और एमरजेंट लेयर होती है उसके नीचे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, जिस वजह से ये ट्रीज, दीज फॉरेस्ट फ्रॉम इनसाइड, दीज आर वेरी डार्क. Mosses and lichens grow on the damp trunk and branches of the trees inside the forest. See, mosses and lichens. These are the, see, this is the picture of mosses and this is the picture of lichen. Mosses और lichens ये creepers की तरह होते हैं जो कि फॉरेस्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर जो ट्रीज के ट्रंक होते हैं ना उनके ऊपर ग्रो होते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन हमारे लिए बहुत यूजफुल है. यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज होते हैं, अबोनी, मोहोगनी, रोजवुड, इस तरह के बहुत सारे ट्रीज होते हैं और ये सारे ट्रीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. जितना भी हमारा वुड का वर्क होता है, जो वुड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो वुड से नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं या वुड को यूज़ करती हैं, उन सब कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए ये सारे ट्रीज बहुत अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. दीज फॉरेस्ट ऑल्सो कंप्राइज क्रीपर्स. यहाँ पर क्रीपर्स भी होते हैं. यू नो द क्रीपर्स विच कांट मूव by themselves, which can't stand by themselves, जो अपने आप से स्टैंड नहीं कर सकते, वो किसी फॉरेस्ट फ्लोर की सहायता से, हेल्प से आगे बढ़ते हैं. क्रीपर्स. Many creepers, orchids
लियान्स एंड टॉल ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं, लियान्स होते हैं और लंबे लंबे ट्रीज भी होते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन एंड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इनटू द एयर, बिकॉज कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। एज वी नो द ट्रीज दे रिलीज द ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को भी बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर फर्स्ट टॉपिक, लोकेशन के लेफ्ट हैंड साइड हमें एक इन्फो पैबल दिया था। इन दैट वी हैव स्टडीड दीज रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड 28% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। ये वर्ल्ड की पूरी ऑक्सीजन का 28% अकेले सप्लाई करते हैं। सो बिकॉज कि यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे नेवर शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। वो एक ही टाइम पर कभी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, वो एवरग्रीन होते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, which forms the thick clouds and result in heavy precipitation, जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहाँ पर बारिश होती है। In fact, that is why they are called the rain forest, और इसीलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट कहते हैं, बिकॉज कि यहाँ के फॉरेस्ट जो मॉइस्चर रिलीज करते हैं उस मॉइस्चर की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उस क्लाउड की वजह से वहाँ पर रेनफॉल होती है, तो इसलिए हम इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। एंड बिकॉज कि यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो एवरग्रीन है, तो हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, नाउ come to our next topic, that is wildlife. Now we have studied about location, climate, plant life. Now we will study that which kind of animals or wildlife is found over here. यहाँ पर किस तरह की wildlife होती है, as these forests are very dark and बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये फॉरेस्ट थिक होते हैं, डेंस होते हैं। सो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है। एनिमल लाइफ इन द इक्वेटोरियल रीजन इज़ फाउंड इन अबेंडेंस, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। देयर आर एन इमेंस नंबर एंड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पर बहुत सारे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं, such as butterflies, mosquitoes, spiders, etc. तो ये सब इंसेक्ट्स होते हैं, एक जैसे नहीं, मतलब उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी होती है। एनिमल्स लाइक गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, वाइल्ड पिग्स एंड ओकापीज। सी दिस इज द ओकापी। सो ये यहाँ के एनिमल्स होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, वाइल्ड पिग्स होते हैं, ओकापीज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द फेमस एनाकोंडा स्नेक इज ऑल्सो एन इनहैबिटेंट ऑफ द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो अमेजोन बेसिन है नियर बाय द अमेजोन रिवर, जो अमेजोन बेसिन है वहाँ पर द फेमस एनाकोंडा स्नेक भी होता है। जो एनाकोंडा, एज वी नो वेरी वेल दैट it has the power, it can eat a human being. So वो एनाकोंडा स्नेक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द बिग एनिमल्स, अगर हम बिग एनिमल्स की बात करें तो बिग एनिमल्स में यहाँ क्या होते हैं, जगुआर्स। सी दिस इज द जगुआर। जगुआर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पर जगुआर्स, क्रोकोडाइल्स और एलिफेंट्स ये बिग लार्ज मैमल्स होते हैं। देन देयर आर एज वेल अ लार्ज वैरायटी ऑफ मंकीज एंड कलरफुल बर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के मंकीज भी होते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी होते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह की वाइल्ड लाइफ होती है। इंसेक्ट्स भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं, स्मॉल एनिमल्स भी होते हैं, बिग एनिमल्स भी होते हैं,
फिर स्नेक्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, मंकीज़ होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारी वेराइटीज और बहुत सारे काइंड्स के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में होती है, अबेंडेंस होती है। ओके, so now we have completed the plant life and the wildlife. Now in our next topic we will study about the human life. Till then, bye.